اور اگلے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری مراد ہے جناب فاروق دلکش سے ملتمس ہوں کہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، نعت کا ہدیہ پیش کریں. چوری چورا والے بھاگ گئے. یہ اونچا نہیں ہو منظر بھائی. نہیں آج نہیں پکڑنا تھا چوری چورا، اس لیے بے فکر ہو کے بیٹھا تھا میں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ لیٹ ہے. نہیں میں اشارہ بھی نہیں کیا ہوں منظر بھائی. بہرحال سچائی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اتنی دیر رات تک آپ بیٹھ کے نعت پاک سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حاضرین کا. مائک بہت اچھا چل رہا ہے اس لیے چونچانا ہو تو اور اچھی بات ہے. میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا. بھئی جو بھی خرابی ہوئی ہے یقین مانیے اور اچھا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، جبکہ ان کا مائک بہت اچھا چل رہا ہے. اگر وہ یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، مگر یہ چاہتے تھے کہ یہ جب اتنا خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے تو مائک کو کچھ اور اچھا کر دیا جائے. اسی میں گڑبڑی ہو گئی. بہت اچھا چل رہا ہے مائک، میں شکر گزار ہوں ان کا. اور ماشاءاللہ نظامت بھی بہت اچھی ہوگی. شکریہ. سامعین بھی بہت اچھے، خوب انعام مطلب اچھا ہی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے ماشاءاللہ. صدر مشاعرہ کی اجازت میرے عزیز دوست منور بھائی یہاں تشریف فرما ہے. میرے بہت ہی کرم فرما آپ کے ہر دل عزیز شاعر بڑے بھائی دل خرابادی صاحب، جن کے لیے پورا ہندوستان منتظر رہتا ہے، سننے کے لیے بےتاب رہتا ہے. آج وہ ہمارے بیچ ہیں، ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے. میں تمامی شعراء کی جانب سے ایک مطلع اور ایک شعر بطور قطع کے پیش کرتا ہوں. اب ایک بار دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ تیار ہیں سننے کے لیے. پورا مجمع مچل کے بولے سبحان اللہ. بہت کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مطلع پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے بعد دل خیرآبادی صاحب کو سننا ہے. بہت کم وقت میں اپنا کام کرتا ہوں اور یہاں سے مطلع پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. جی عنایت. اہل حق سے باطل کیا ٹکرائے گا. باطل کیا ٹکرائے گا. شعر اچھا لگے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ اہل حق سے باطل کیا ٹکرائے گا. اہل حق سے باطل کیا ٹکرائے گا. اہل حق سے باطل کیا ٹکرائے گا. پرچم حق کو کوئی جھکا نہ پائے گا. اہل حق کوئی جھکا نہ پائے گا. کہ میدان میں شمشیر روزے تر نکلے گی. کہ میدان میں شمشیر روزے تر نکلے گی. کیا دین کا دشمن دہشت سے مر جائے. بہت خوب بھائی، کیا کہتے ہیں. بہت اچھے بھائی، کیا کہنے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی جی میں پیش کرتا ہوں. دوبارہ ہوگا اجازت ہے. ارے بول دو مچل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ پرچم حق کو کوئی جھکا نہ پائے گا.
से मैं ये शेर पेश करता हूँ। आपकी दावत में नहीं आया था, मेरी कुछ मजबूरी थी, आप नाराज नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है। पेश करता हूँ, अगला मुलाजा करें यहाँ से। आपका हिस्सा भी मैंने खा लिया था। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि मंजर भाई आपने खा लिया। पेश करता हूँ मुलाजा। जी अता। यहाँ पर इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, यहाँ पर इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, वहाँ पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस न आने की, वहाँ पर जिद पकड़ लेंगे कभी वापस न आने की, लिपट जाएंगे कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, लिपट जाएंगे कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। क्या कहने, बहुत खूब भाई, क्या कहने फारूक भाई, जवाब नहीं, ठोकर लगानी है। जी मंजर भाई आ रहा है, कसम खुदा है, बहुत बड़ा है। आएगा आएगा, यहाँ से 4 मिसरे और पेश भाई करता हूँ। नाउमीदी कुफ्र है, उम्मीद लगाए रही है, आएगा। भाई मुनव्वर भाई, शमशाद भाई आज के इस मुशायरे के सदर हैं, और दानिश भाई कन्वीनर हैं, राशिद भाई दोस्त मेरे हैं, और मोहसिन भाई हैं, बहुत से लोग हैं, तशरीफ फरमा हैं। 4 मिसरे पेश करता हूँ। अफजल नेता उर्फ पप्पू, जो कौमी एकता दल के नौजवान नेता हैं, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। सभी के हवाले से एक मतला पेश करता हूँ। जितने सरों पे टोपियाँ मुझे नजर आ रही हैं, इन तलबा के हवाले से मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। अता। हम अपने से बातिल को मिटा देंगे, क्या कहने, हम अपने जज़्बे ईमान से बातिल को मिटा देंगे, कि हम तबलीग वाले ज़माने को बता देंगे, कि हम तबलीग वाले ज़माने को बता देंगे। खुदा की राह में सर पे कफन लेकर निकलते गए, ज़रूरत पेश आई तो हम अपना सर कटा देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये माला बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा लग रहा है इलेक्शन में खड़ा। करीबी है, दिल भाई, नियत बदले ना। एक मतला मंजर भाई पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल नाते पाक का नया मतला, सुनिएगा पूरे डाइट के हवाले से। ताबिश रेहान और चौरी चौरा जो दिखा के वो तो चले गए बेचारे, वो भी मेरे दोस्त हैं, शाहिद गवर साहब और दीगर शुराए कराम यहाँ तशरीफ फरमाए, साहब नुमानी, सभी को इस मतले में शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि क़िरा से अंधेरों, अरे बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, कि क़िरा से अंधेरों में ज़िया कौन करेगा, क़िरा से अंधेरों में ज़िया कौन करेगा, क़िरा से अंधेरों में ज़िया कौन करेगा, क़िरा से अंधेरों में
नबूवत का शाहिद ताइफ का हर एक ज़र्रा नबूवत का शाहिद ताइफ का हर एक ज़र्रा नबूवत का शाहिद ताइफ का हर एक ज़र्रा ताइफ का हर एक ज़र्रा नबूवत का शाहिद पत्थरियाँ खा खा के दुआ कौन करेगा पत्थरियाँ खा के दुआ कौन करेगा दुआ कौन करेगा और मनक़बत का एक शेर पेश करता हूँ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बतौर खास मुलाज़ा फरमाए कि इख़लाक़ की तलवार इख़लाक़ की तलवार इख़लाक़ की तलवार से घायल था वगरना इख़लाक़ की तलवार इख़लाक़ की तलवार से इख़लाक़ की तलवार से घायल था वगरना फारूक को माइल बखुदा कौन करेगा भाई क्या करें अरे माइक ना तोड़ दे भाई अरे भाई थोड़ा संभल के चढ़िए नहीं माइक टूट जाए कहीं केबल न टूट जाए इतनी जल्दी आराम से आइए आराम से जाइए बहुत बहुत शुक्रिया बस हम माला कम कर दीजिए शेर सुनिए इसलिए कि मेरे बात दिल भाई को सुनना है भरपूर सुनना है पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं कि ये काम शगेदी के सिवा कौन करेगा इक़रा से अंधेरों में ज़िया कौन करेगा पूरा मजमा में चल के बोल दे सुभान अल्लाह कि इक़रा से अंधेरों में ज़िया कौन करेगा इख़लाक़ की तलवार से इख़लाक़ की तलवार से घायल तब वगरना फारूक को माइल बखुदा कौन करेगा इक़रा से अंधेरों में ज़िया कौन करेगा और इस नाते पाक का आखिरी शेर लियाकत भाई पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं कि अक़साम इसी वास्ते की सबकी इमामत क्या कहने बहुत खूब कि अक़साम इसी वास्ते की सबकी इमामत अक़साम इसी वास्ते की सबकी इमामत अक़साम इसी वास्ते अक़साम इसी वास्ते की सबकी इमामत जो हक़ इमामत था अदा कौन करेगा जो हक़ इमामत था अदा कौन करेगा इक़रा से अंधेरों में इक़रा से अंधेरों में ज़िया कौन करेगा ये काम शगेदी के सिवा कौन करेगा बहुत शुक्रिया हाज़रीन आइए एक मतलब दो शेर और पेश करता हूँ अगर उसके बाद हुक्म हुआ तो एक नातिया गीत में इंशाअल्लाह पेश करूँगा इजाज़त है तो मचल के बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुनिएगा जी। दानिश भाई एक सवाल है आपसे ताबिश रेहान साहब ने कहा था कि नाते पाक का कोई भी शेर हो पुराना नहीं होता और न खराब होता और नाते पाक न कभी मुकम्मल होती मैं पेश करता हूँ एक मतला मंजर भाई एक सवाल आपसे है अगर ये सवाल अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे इधर जो मेरे भाई देर
हजरात से यहाँ खड़े हैं, इनकी भी दुआएं चाहता हूँ मुलाहिजा करें। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? लगना चाहिए अगले मिसरे पे कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहाँ कसब से, जहाँ कसब से उम्दा सवाल है कि नहीं? नारे तकबीर! बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बहुत से शुराए कराम ने उनकी शान में अशार सुनाए। मैं भी एक शेर पेश करता हूं, अच्छा लगे तो अगली सब से लेकर पिछली सब तक जितने मेरे छोटे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी दुआएं चाहता हूं मुलाजा फरमाएं। बतौर खास सुनिएगा कि सुना है मेला, सुना है मिला, सुना है मेला लगा गए हसीन चेहरों का। अरे बोलो बचल के सुभान अल्लाह। कि सुना है मेला लगा गए हसीन चेहरों का। सुना है मिला लगा है, सुना है मेला लगा गए हसीन चेहरों का। चलो तो देखे, चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं? क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या शेर पढ़ दिया भाई। इसको दोबारा पढ़िए, दो तीन बार इसको पढ़िए। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तो दे अब्दुर्रहमान भाई सुनिए। बहुत प्यारा शेर है भाई, क्या कहने। जमाल। इसको पढ़ते जाए, आप जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़े। क्या शेर है, माशाअल्लाह। अरे खुदा के वास्ते बोल दो सुभान अल्लाह। कह दीजिए भाई, दिल लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह, कसम खुदा की मेहनत उसूल होगी। फिर मैं पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। बहुत प्यारा शेर है, पढ़े भाई। कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? सुना है मेला लगा गए हसीन चेहरों का। सुरेश भाई आप भी सुनिए। सुना है मेला लगा गए हसीन चेहरों का। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का। चलो तो देखें, चलो तो देखें नबी का बिलाल है कि नहीं? क्या कहने भाई, क्या कहने। जनाबे बिलाल हबशी की तारीफ कितनी खूबसूरती से बयान की आपने, वाह क्या कहने। काफ़ी देर से जुल्फ़िकार उर्फ लड्डू साहब सभी शोरा को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी हयात में तरक्की अता फरमाए। पेश करता हूँ एक शेर और बतौर खास लिहाजा फरमाए। ये शेर भी बहुत प्यारा है। वैसे तो नातिक पाक के जितने भी अशार पढ़े जाएं सब प्यारे हैं, लेकिन मुझे ये अजीज है इसलिए मैं कहता हूँ अगर अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूँ इनायत तो भाई क्या कहने, पढ़े पढ़े पढ़े। नमाज अक़सा, बहुत ही अच्छा शेर। कि नमाज अक़सा में तूने पढ़ी है ऐ मूसा, नमाज अक़सा में तूने
अक्सा में तूने पढ़ी है मूसा, क्या कहने? बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं। अब यहाँ से मैं नाते पाक का एक मतला पेश करता हूँ और 2-3 बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, इसलिए कि आप काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं। जनाब दिल खैराबादी साहब जो मेरे बहुत ही अजीज़ हैं, आपके भी हैं, उन्हें सुनना है। एक मतला और चंद बंद पेश करता हूँ और उसके बाद ज़हमत तमाम पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। तो भाई क्या कहने? देखिए फरमाइश है, फरमाइश के नाम पे मैं चाहता हूँ एक बार आप बोल दें मचल के सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। अरे बोलो खुल के मचल के सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। मेरे आका की निराली शान है कि नहीं? बोल तो मचल के सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। मेरे आका की निराली शान, 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 मेरे आका की निराली शान। उनकी अज़मत पर कर डालो, उनकी अज़मत पर कर डालो तन मन धन कुर्बान। मेरे आका की निराली शान, मेरे आका की निराली शान। और पहला बंद पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि देखो करम के बील लगाए अब्दुल्ला के द्वारे, जिन्नो बशर और हूर मलाए सबने आज बताए। देखो करम के बील लगाए अब्दुल्ला के द्वारे, जिन्नो बशर और हूर मलाए सबने आज बताए। डंक बजेगा आज नबी का, डंक बजेगा आज नबी का, सबका है ऐलान। मेरे आका की निराली शान, आजकल जो मुसलमानों के हालात बर्मा में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है उस मुसीबत को जितनी जल्दी हो सके टाल दे। सबकी दुआ है, पूरी दुनिया दुआ गो है। मैं पेश करता हूँ एक बंद जहाँ तक मुसलमानों को तरह तरह की अजियतें दी जाती हैं और हम सबके रहबर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जाती है, उन लोगों के हवाले से एक बंद पेश करता हूँ बतौर खास कि मेरे आका की निराली शान, मेरे आका की निराली शान। अब तक गम खामोश थे लेकिन, अब तक गम खामोश थे लेकिन अपना जुल्म सहेंगे। अब तक गम खामोश थे लेकिन अपना जुल्म सहेंगे। अब तक गम खामोश थे लेकिन अपना जुल्म सहेंगे। खालिद व हमजा मर्द मुजाहिद बन के आज रहेंगे। खालिद व हमजा बन के मुजाहिद बन के आज रहेंगे। जो भी करे तौहीन नबी की, जो भी करे तौहीन नबी की, ले लो उसकी जान। मेरे मदरसों में से नारा लगा। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ मुलाज़ा कि मेरे आका के निराले शान, कि फर्श ज़मीं से अर्श बरी तक, मेरा अर्श ज़मीं से अर्श बरी तक, कि फर्श ज़मीं से अर्श बरी तक पल में आना जाना। आज नबी का रब से मिलकर दिल का हाल बताना। फर्श ज़मीं से अर्श बरी तक पल में आना जाना। आज नबी का रब से मिलकर दिल का हाल बताना।
बुला दूंगा, लेकिन दिल खैराबादी को सुनने के बाद। तो मैंने क्या कहा, मैंने भी तो वही कहा, दिल खैराबादी को सुनने के बाद उन्हें फिर बुला दूंगा। आइए हजरात, अभी फारूक दिलकश ने अपना कलाम पेश किया। अब हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी दिल खैराबादी साहब हैं। इनको सुनने के बाद अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो जिसे कहेंगे उसे बुलाऊंगा। लेकिन आज बड़ी खुशी इस बात की है कि अक्सर मुशायरों में आखिर के शायरों को मुझसे ये शिकायत हो जाया करती है कि हमें आखिर तक आपने रोक के रखा, हमें मजमा नहीं मिला, पूरा मजमा चला गया, कुछ लोग बचे थे। यह शिकायत बारहा हुआ करती है। लेकिन आज का यह मजमा, जैसा कि मैंने शुरू में अंदाजा पेश किया था, उस अंदाजे के मुताबिक अब तक पूरा मजमा जमा हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि शुरू से आए हुए लोग अब तक यहाँ मौजूद हैं, बल्कि ये भी देख रहा हूं कि जिस तरीके से खड़े थे शुरू में, आज भी वो अब तक वो लोग खड़े हैं। पूरा प्रोग्राम खड़े खड़े उन्होंने सुना है। मैं उनकी इस कुर्बानी को मुबारकबाद, कुर्बानी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं उनको। और उनका शुक्रिया अदा करते हुए